کہانی آپ کے سب دوستوں کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے جہنم سے واپسی۔ یہ ایک ایسے فوٹوگرافر کی کہانی ہے جس کا وزٹ اور فن جہنم میں تبدیل ہو گیا، اور وہ کیسے اس میں سے نکل کر واپس آیا، یہ جاننے کے لیے ہماری کہانی سنیں۔ کہانی سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیجیے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ 26 سالہ کینیڈین جارڈن نیکورٹی فوٹوگرافی کے ساتھ ساتھ کلائمبنگ کا بھی بہت شوقین تھا۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد نرسری اور فارم کے شعبہ سے منسلک ہو گیا۔ ایک دن وہ اپنے شوق کو تسکین دینے کے لیے سمندر کے کنارے گیا، جہاں زیادہ لوگوں کا رش نہیں ہوتا تھا، اور وہاں کے مناظر بہت حسین اور خوبصورت تھے۔ اس کا خیال تھا کہ لنچ ٹائم سے پہلے وہ فوٹوگرافی کرنے کے بعد گھر واپس پہنچ جائے گا۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا، اکتوبر کا مہینہ ختم ہونے والا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک سویٹر اور چائے بیک پیک میں رکھی اور جزیرے کی طرف چل پڑا۔ آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد وہ مشروم بیچ پر پہنچ گیا۔ بیچ تک پہنچنے کے لیے اسے نیچے اترنا تھا۔ اس نے ایک رسی لی اور قریبی درخت کے ساتھ باندھ دی اور نیچے اترنے لگا۔ یہ تھوڑی سی ٹرکی کلائمبنگ تھی۔ نیچے سمندر کے کنارے پہنچ کر اس خوبصورت بیچ کی تصویریں لینا شروع کر دی۔ سمندر کے کنارے اسے ایک لکڑی کا چھوٹا سا شیلٹر بنا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اس کی بھی تصویریں لی اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ یہ بہت ہی پرسکون جگہ تھی۔ ہوا چل رہی تھی اور سمندر کی آواز ذہن کو سکون پہنچا رہی تھی۔ بریک کے بعد جارڈن فوٹوگرافی کے لیے اٹھا۔ وہ تصویریں لے رہا تھا اور اپنا بیسٹ شوٹ لینے کے لیے منظر تلاش کرنے لگا۔ مشروم بیچ اپنی راک فارمیشن کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس نے گراؤنڈ سے تمام تصویریں لے لی تھی اور اب وہ ہائر گراؤنڈ سے شوٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا کیمرہ اور بیگ وہیں چھوڑا اور اوپر جانے کے لیے مناسب مقام اور جگہ کو تلاش کرنے لگا۔ اسے کلائمبنگ کرنا بہت پسند تھا۔ جارڈن جیسے جیسے اوپر چڑھتا جا رہا تھا، پہاڑی سٹیپ ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اوپر جانا ترک کر دے۔ اگر وہ یہاں سے نیچے گر گیا تو کیا ہوگا؟ مگر اسے اپنا بیسٹ شوٹ ڈھونڈنے کے لیے اوپر جانا ضروری تھا، اور جیسے ہی اس نے کریک میں ہاتھ ڈالا، پتھر ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ پتھر کو نیچے گرتا ہوا دیکھ رہا تھا اور اس نے سوچا اب اس کی باری ہے، اور وہ اپنا بیلنس قائم نہ رکھ سکا اور نیچے پتھروں پر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو کھلا آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اسے سر میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نیلے آسمان کو گھور رہا تھا۔ وہ سرپرائز تھا کہ وہ زندہ بچ گیا ہے۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس کا دماغ اور آنکھیں کام کر رہی تھیں۔ اس کا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ سے اپنا سر چیک کیا، جہاں اسے چھوٹا سا زخم محسوس ہوا، اور اس کے بعد 5 منٹ تک وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنا پاؤں ہلانے میں کامیاب ہو گیا، اور اسے محسوس ہوا کہ وہ پیرالائز نہیں ہوا۔ اس کی کمر کی ہڈی نہیں ٹوٹی، اور جیسے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو درد کے ساتھ چیخ اٹھا۔ اسے اپنی ہڈیوں کے چڑکنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ہاتھ لگا کر
अपने हिप की टूटी हुई हड्डी को महसूस किया। इसकी पेल्विस बोन टूट चुकी थी। इसकी राइट लेग इसके जिस्म से अलग हो गई थी। इसका खड़ा होना नामुमकिन था। इसने सोचा कि वो मुड़ जाए और अपने पेट के बल रेंगता हुआ चला जाए, और जैसे ही इसने अपने आप को मोड़ा तो इसे महसूस हो गया कि वो बहुत बुरी हालत में है। दर्द से इसका बुरा हाल हो रहा था। वो अपना मोबाइल फोन गाड़ी ही में छोड़ आया था और अब वो इस मुकाम पर अकेला था, मशरूम बीच पर। इस किस्म के मौसमी हालात में विजिटर्स बहुत कम आते हैं। अब वो वहाँ पर अकेला था और इसे अपनी मदद आप करनी थी। इसकी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। इसे चट्टान से गिरे हुए 1 घंटा गुजर गया था। जॉर्डन को लकड़ी से बना हुआ शेल्टर याद आया कि वो किसी तरह वहां रात होने से पहले पहुंच जाए और आग लगाकर अपने आप को सर्दी से महफूज कर ले। लेकिन इससे पहले इसको अपने बैकपैक तक पहुंचना था, जिसमें इसका स्वेटर और गर्म चाय थर्मस में मौजूद थी, और इसने एक जोरदार झटके के साथ अपना रुख मोड़ा। वो दर्द से चिल्ला रहा था। अभी तो ये शुरुआत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता दर्द के साथ रेंगने लगा और हल्की सी हरकत इसके लिए तकलीफ से कम नहीं थी। इसने फिल्मों में देखा था, अगर कोई जख्मी हो जाता या गोली लग जाती तो वो अपने मुंह में कोई चीज दबा लेते। इसने सोचा कि इसको भी ऐसा ही कुछ ट्राई करना चाहिए, तो इसने अपनी बेल्ट उतारी और अपने मुंह में दबा ली। बेल्ट को मुंह में दबाने से इसका जहन दर्द महसूस करने से हट गया और वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगा। चट्टानों के ऊंचे नीचे होने की वजह से इसका रास्ता रुक रहा था और इसे वहां से गुजरते हुए बहुत तकलीफ हो रही थी। और आगे क्या है इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। और एक मुकाम ऐसा आया कि उसको खड़े होकर वहां से गुजरना था। वो दरमियान में बिल्कुल अटक कर रह गया। ना वो आगे जा सकता था और ना ही पीछे हट सकता था। वो जोर जोर से मदद के लिए पुकार रहा था कि कोई इसकी मदद करे, मगर तेज हवाओं और समुंदर के शोर में इसकी आवाज गुम हो रही थी। इसकी मदद के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था और वो 15 मिनट वहीं अटके रहने के बाद इसने अपनी टांग को पकड़ा और नीचे गिर गया। और ये लम्हा दर्द से खाली नहीं था। 14 मीटर का सफर इसने 4 घंटे में तय किया। वो अभी अपने बैकपैक से बहुत दूर था। अभी वो कुछ देर के लिए रुका ही था कि इसे मालूम हुआ कि समुंदर की लहरें इसकी तरफ बढ़ रही हैं और वो जगह आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब रही है। वो पानी के जमा होने से पहले वहां से निकल जाना चाहता था, और जब वो अपने बैग तक पहुंचा तब तक शाम हो गई थी। इसने थर्मस से चाय पी। रात होते ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इसने अपना स्वेटर निकाल कर पहना और जब इसने सोने की कोशिश की तो हर बार इसकी आंख गिरने के मंजर से खुल जाती और ये रात ना खत्म होने वाली महसूस हो रही थी। और अगले दिन जब रोशनी हुई दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। इसने अपनी बेल्ट अपने पाँव के साथ बांध ली और इसका दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़ लिया। इस तरह वो अपनी टूटी हुई टांग को बआसानी हरकत दे सकता था और इसे इस तरह करते हुए ज्यादा दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे अपने आप को चट्टानों और पत्थर पर घसीटते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने जिस्म को सैंड पेपर से रगड़ रहा हो। इसकी उंगलियां जख्मी हो गई थीं, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। इस तरह कोशिश करते हुए इसे दोपहर का वक्त हो गया था और इसे प्यास भी महसूस हो रही थी। पत्थरों के दरमियान समुंदर का पानी जमा था। जॉर्डन को मालूम था कि ये पानी सॉल्टिश है, मगर वो प्यास के हाथों मजबूर था और पानी पीने लगा। कमजोरी और मुकम्मल नींद ना मिलने पर इसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसने महसूस किया कि समुंदर के अंदर कोई मौजूद है। इसने इसे मदद के लिए पुकारा, अपना हाथ हिला-हिलाकर अपनी तरफ मतवज्जा किया, मगर जब इसने गौर से देखा तो वहाँ पत्थर के सिवा कोई नहीं था। इसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहा था। वो अभी हाफ वे पर ही था कि अचानक बारिश शुरू हो गई।
30 घंटे की लगातार कोशिश के बाद वो लकड़ी के बने हुए शेल्टर तक पहुंच गया। बारिश हो जाने की वजह से सब कुछ गीला हो गया था और आग जलाना मुश्किल था। वो शेल्टर तक पहुंचा और शुक्र अदा करने लगा। इसे महसूस हुआ कि समुंदर का पानी पीना इसकी बहुत बड़ी गलती थी। वो बार बार वॉमिट कर रहा था। वो पूरी तरह से भीग चुका था और इन गीले कपड़ों में इसे सर्दी महसूस हो रही थी। इसकी तबीयत खराब हो रही थी। वो अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगा। अब ये मुमकिन नहीं कि वो दोबारा इनसे मिल पाएगा। वो अपने छोटे भाई को याद कर रहा था। क्या वो अपने छोटे भाई से मिल पाएगा? और जब तक इसकी फैमिली को मालूम होता कि वो लापता है, तब तक वो मर चुका होगा। अगली सुबह तीसरे दिन जॉर्डन सोचने लगा, हो सकता है अगर कोई यहाँ आ जाए और इसे मदद मिल जाए। अब इसके आगे वही पहाड़ था जिसे नीचे उतरते हुए इसे काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। वो सोच रहा था कि ऊपर कैसे जाएगा। ऊपर चढ़ना, वो भी बिना टांगों के, नामुमकिन था क्योंकि उसे नीचे उतरते वक्त काफी मुश्किल पेश आई थी। इसने हिम्मत नहीं हारी कि वो ये कर सकता है। वो आगे बढ़ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कर लूंगा, और अगर वो यहाँ रुका रहा तो मौत इसका मुकद्दर थी। और वो इस रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगा। वो पूरी ताकत के साथ ऊपर चढ़ रहा था कि अचानक रस्सी जिसे इसने दरख्त के साथ बांधा था खुल गई। वो नीचे गिरते गिरते बचा कि अगर वो यहाँ से नीचे गिर गया तो यकीनन मर जाएगा या हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगा। अपने आप को बचाने के लिए इसने साथ मौजूद पत्थर को मजबूती से पकड़ लिया। इसके हाथ जख्मी थे और इसकी ग्रिप पत्थर पर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। वो अपनी पूरी ताकत के साथ घास को ग्रिप करता हुआ ऊपर चढ़ता रहा और आखिरकार वो ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया। इसका जिस्म कट लग जाने की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसने माउंट एवरेस्ट सर कर ली हो। इसे इस तरह रेंगते हुए 2 दिन हो गए थे। इसे शदीद प्यास लग रही थी। इसे यहाँ भी मदद के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, मगर फिर भी वो मदद के लिए पुकारता रहा कि हो सकता है कोई हाइकिंग के लिए यहाँ आया हो और इसको मदद मिल जाए। प्यास की वजह से इसका गला सूख रहा था। बारिश की वजह से घास पर कुछ पानी के कतरे जमा थे। इसने घास को चाटकर प्यास बुझाने की कोशिश की। इसे इस तरह रेंगते हुए मजीद 6 घंटे लग गए और शाम का वक्त होने लगा। वो पिकनिक बेंच के पास जा पहुंचा और रात वहां गुजारने का सोचते हुए रोने लगा। चौथे दिन वो हिम्मत करके जॉगिंग ट्रैक तक पहुंचना चाहता था ताकि वो वहां से गुजरने वालों को मदद के लिए पुकार सके। वो हिम्मत हार चुका था। वो सोच रहा था कि अब वो जिंदा नहीं बच सकता, वो यहाँ ही मर जाएगा कि अचानक इसको कुछ आवाजें सुनाई दी। इसने इनको मदद के लिए पुकारा, मगर इसकी आवाज ना होने के बराबर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मदद के लिए पुकार रहा था, जिसे कोई भी बआसानी नहीं सुन सकता था। आखिर इसने दोबारा अपनी पूरी ताकत के साथ एक बार फिर जोर से आवाज दी तो सबसे लास्ट में ऑरेंज कलर का टॉप पहने हुए एक खातून ने इसकी आवाज सुन ली। इसने जॉर्डन की तरफ देखा और इसकी मदद के लिए इसके पास पहुंच गई। जॉर्डन ने इसे कहा कि मैं अपने हिस्से का काम कर चुका, अब आगे क्या करना है ये तुम्हारा काम है, और सुकून से लेट गया। इसे करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इसके कई ऑपरेशन हुए और इसकी पेल्वस बोन को 3 बड़े स्क्रूज के साथ जोड़ा गया। जॉर्डन पूरी तरह से रिकवर हो गया और अपनी फैमिली के पास दोबारा वापस लौट आया। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा हाजिर होंगे एक नई और मुनफरिद कहानी के साथ। जाते जाते आपसे दोबारा दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें।